Hello and welcome everyone. Myself Bhagyashree. Today we are going to start our new topic, that is assignment problem, which is given in CMA final paper number 15, study note number 6. So first of all, here they have given us a meaning of assignment. Okay, assignment is a special linear programming. So ये जो assignment के problem होते हैं, it is a special linear प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम. ओके, सो ये सॉल्व करने के हम लोग के पास 4 मेथड्स हैं. देर आर 4 मेथड्स ऑफ सॉल्विंग असाइनमेंट प्रॉब्लम, बट इन आर सिलेबस ओनली हंगेरियन मेथड इज देयर. So we will directly start with a question so that we will be able to understand properly what we will exactly do. Okay, so इसमें क्या है ना, डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप लोग को अच्छे से समझेगा कि हम लोग को क्या क्या स्टेप्स करना है. ओके, in this assignment problem the steps are very important. If we will be able to understand the steps properly, then we are able to solve the question in a correct way. So meaning जो भी है वो हम लोग को इधर दिया है, तो it's very easy, तो आप लोग समझ सकते हो. Will understand the meaning in short. That in case of Hungarian method, we have to do first of all row operation, then column operation, ऑप्टिमलिटी एंड इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स. ओके, जो भी स्टेप्स है वो हम लोग को इधर लिख के दिया है. बट बेसिकली ये जो क्वेश्चन होते हैं वो क्यों किए जाते हैं. सी, दिस क्वेश्चंस आर सॉल्व टू गेट अ मिनिमम कॉस्ट और इज अ मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम सेल. This kind of things means to find out minimum or maximum element, we have to solve the assignment problem. Okay, in case of this chapter, that is assignment problem, we have to understand the steps. By using the steps we can easily find out the correct answer. So let's start with the first illustration, that is illustration number 9. The average time taken by the operator on a specific machine is tabulated below. The management is considering replacing one of the old machine by a new one, and the estimated time for the operation by each operator on the new machine is also indicated. The meaning of this para is, there is a one company in that 6 machines are already there, and each and every machine has one operator. So here number of machine is given and here operator is given. Okay, तो एक कंपनी में क्या है ना, 6 मशीन्स है और उसके लिए जो भी ऑपरेटर्स है वो इधर दिया है, मतलब एक मशीन के लिए एक ऑपरेटर है. उसके बाद हम लोग को बोला है कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है उसको एक मशीनरी रिप्लेस करना है, मतलब ओल्ड मशीन है तो उसको न्यू से रिप्लेस करना है. सो इसीलिए न्यू मशीन का इधर डेटा हम लोग को दिया है. ओके, सो कंपनी मैनेजमेंट वांट्स टू रिप्लेस ओल्ड मशीन विथ अ न्यू वन, so that's why new machine data is given here. Let's see that what we are going to calculate. Find out an allocation of operator to the old machines to achieve the minimum operation. Okay, so minimum operation operation time we have to find out for the old machines. Means question will be only up to this M6 मशीनरी 6, इतना ही हम लोग का क्वेश्चन ये जो ए पार्ट है वो सॉल्व करने के लिए रहेगा, क्योंकि हम लोग को बोला है ओल्ड मशीन. सो ओल्ड मशीन इज अप टू M6. सो वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व विथ this part only. Okay, up to M6 only. Next, reset the problem with a new machine and also find out the allocation of the operator to each machine and comment on whether it is advantageous to replace an old machine to achieve the reduction in the operation time only. Okay, so इसका मतलब है कि हम लोग को फर्स्ट जो पार्ट है दैट इज ए पार्ट हम लोग ये M6 तक लेके ही करेंगे. देन नेक्स्ट वी हैव टू रीसेट द प्रॉब्लम एंड वी विल सॉल्व विद दिस न्यू मशीन पार्ट. मीन्स नेक्स्ट टाइम जो बी वाला पार्ट करते वक्त हम लोग को ये न्यू मशीनरी का कॉलम भी लेके आंसर फाइंड आउट करना है और बताना है कि एडवांटेजेस होगा कि नहीं हम लोग को, मतलब रिप्लेस करने के बाद ये न्यू मशीनरी लेने के बाद हम लोग को जो भी टाइम रिक्वायर्ड ऑपरेशन टाइम वो मिनिमम होगा कि नहीं, मतलब एडवांटेज मिलेगा कि नहीं, वो हम लोग को इधर बताना है. सी, how will the operator be reallocated to the machines after replacement. Okay, so this is the third question, that we have to show that after replacement what
which kind of this table will be means after replacement relocation कैसे किया जाएगा वो हम लोग को इधर बताना है. First of all we'll concentrate on this A part. Find out an allocation of operators to old machine to achieve a minimum operation time. Okay, so first of all हम लोग को मिनिमम ऑपरेशन टाइम फाइंड आउट करना है ओल्ड मशीन से, यानी कि इधर तक ही क्वेश्चन है, ऐसे कंसिडर करके हम लोग को फाइंड आउट करना है. सो क्वेश्चन नंबर 9 ए पार्ट विल सॉल्व फर्स्ट. सी, उसके लिए हम लोग ने ये ऐसे टेबल प्रिपेयर किया है. फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी क्वेश्चन में दिया है, सी दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज 2 3 2 1 4 5. लाइक दिस वी हैव टू कॉपी ऑल दिस रोज एंड दिस कॉलम्स. ओके, अप टू दिस M6. मतलब ये जो इतना पार्ट है वो जैसे के वैसा ही हम लोग ने उधर कॉपी करके लिया है. ओके, पूरा ये जो न्यूमेरिकल पार्ट है ना, M1 से लेके M6 तक इतना, वो सारा हम लोग ने उधर कॉपी करके लिया है. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. ओके, whichever table is given in the question we have to copy as it is. Okay, without writing machinery number and operator number. Okay, मशीनरी का नंबर्स नहीं लिखना है, ऑपरेशन का नंबर नहीं लिखना है, सिंपली न्यूमेरिकल जो भी नंबर्स हम लोग को दिया है डेटा उतना ही इधर लिखना है. दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप. उसके बाद सी, अभी ध्यान से करना है, मैं दोनों लैंग्वेज में बताऊंगी, हिंदी में भी इंग्लिश में भी. आप लोग प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट वी आर डूइंग एग्जैक्टली. सो फर्स्ट स्टेप इज फाइंड आउट द मिनिमम इन अ रो. ओके, फाइंड आउट द मिनिमम नंबर इन अ रो. ये जो भी रो है, मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल रहता है उसको हम लोग रो बोलते हैं, और जो वर्टिकल रहता है इसको हम लोग कॉलम बोलते हैं. First of all we have to remember what is row, what is column. Okay, this is the row which is horizontal, this is the column which is vertical. Okay, first of all we will find out minimum value of the row, minimum value of the each row. So in the first row minimum value is 1. Okay, जो भी रोज है उसमें से हम लोग को मिनिमम वैल्यूज फाइंड आउट करना है. सो फर्स्ट रो में मिनिमम वैल्यू है 1. नेक्स्ट, in the second row minimum value is 2. in the third row minimum value is 4. next minimum value is 3. next minimum value is again 3. next minimum value is 1. Okay, first step we have to record, actually we have to copy as it is the table. then next we will find out the minimum value of each row. पहले हम लोग ने टेबल कॉपी किया, उसके बाद मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट किया रो वाइज मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट किया. अभी नेक्स्ट क्या करना है, इधर रो रिडक्शन किया जाएगा. ओके, सो नेक्स्ट स्टेप इज रो रिडक्शन. ओके, इट इज़ वेरी सिंपल स्टेप बट वी हैव टू डू इट केयरफुली. सो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 - 1, मतलब जो भी हम लोग का नंबर है उसमें से मिनिमम वैल्यू माइनस करना है और इधर लिखना है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल टेक दिस 2, देन उसमें से माइनस करेंगे 1, सो विल राइट हियर 1. 2 - 1 1. ओके, वी हैव टू डिडक्ट दिस मिनिमम वैल्यू फ्रॉम ईच नंबर फ्रॉम दिस रो. सो 2 - 1 दैट इज़ 1, 3 - 1 दैट इज़ 2, 2 - 1 दैट इज़ 1. नेक्स्ट 1 - 1 1 it is 0. next 4 - 1 that is 3. 5 - 1 that is 4. ओके, सिंपल स्टेप है. जो भी हम लोग का नंबर रहता है उसमें से ये मिनिमम वैल्यू माइनस करके जो बचेगा वो लिखना है. सारे नंबर्स के लिए वैसा ही. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक दिस 2, उसमें से माइनस करेंगे 1, then we'll write whatever balance is there. So 2 - 1 it is 1. like that we have completed the first row. now second row, that is 4 - 2 that is 2, 4 - 2 that is 2, 6 - 2 4, 3 - 2 1, 2 - 2 0, 5 - 2 3. okay, next this 6 - 4 2, 10 - 4 6, 8 - 4 4, 4 - 4 0, 7 - 4 3, 6 - 4 2. next now 8 - 3 5, 7 - 3 4, 6 - 3 3, 5 - 3 2, 3 - 3 0, 9 - 3 6. okay, next 7 - 3 4, 3 - 3 0, 4 - 3 1, 5 - 3 2,
4 minus 3 1, 3 minus 3 0. Next 5 minus 1 4, 5 minus 1 4, 6 minus 1 5, 7 minus 1 6, 8 minus 1 7, 1 minus 1 0. Okay, simply we have deducted this minimum values from each number and we have recorded this new table, that is row reduction table. So next we will find out column wise minimum value. Here we have found that row wise minimum value. Now we will find out कॉलम वाइज मिनिमम वैल्यू. ओके, सो इधर हम लोग ने रो वाइज जो भी मिनिमम वैल्यू है वो फाइंड आउट किया था. अभी हम लोग कॉलम वाइज मिनिमम वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे. सो फर्स्ट कॉलम मिनिमम वैल्यू इज 1, सेकेंड कॉलम मिनिमम वैल्यू इज 0, थर्ड कॉलम मिनिमम वैल्यू इज 1, फोर्थ कॉलम मिनिमम वैल्यू इज 0, फिफ्थ कॉलम मिनिमम वैल्यू इज 0, सिक्स्थ कॉलम मिनिमम वैल्यू इज 0. दिस इज द कॉलम वाइज मिनिमम वैल्यूज. Now we will do column reduction. Here we have completed row reduction. Now we will do column reduction. Okay, so while doing column reduction we will deduct this minimum value from each number. Okay, so column जैसे रो रिडक्शन किया वैसे ही कॉलम रिडक्शन करना है. रो में कैसे किया, रो वाइज हम लोग ने माइनस किया, मतलब 2 minus 1 ऐसे करके पूरा टेबल प्रिपेयर किया. अभी हम लोग को कॉलम वाइज प्रिपेयर करना है. सो ये जो मिनिमम नंबर है वो हर एक नंबर से, मतलब ये कॉलम वाइज हम लोग माइनस करके लिखेंगे. ओके, सो ध्यान से देखना. सी 1 minus 1 अभी वर्टिकली करना है. इतने देर तक हम लोग ने हॉरिजॉन्टली किया, अभी वर्टिकली. ओके, वी हैव कंप्लीटेड दिस टेबल हॉरिजॉन्टली. नाउ विल डू वर्टिकली. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 minus 1 it is 0, 1 minus 1 it is 0. Then next 2 minus 1, see 2 minus 1 it is 1, 2 minus 1 again 1. Okay, 5 minus 1 4, next 4 minus 1 3, 4 minus 1 3. We have completed the first column. Next 2 minus 0. Now everywhere will minus by 0. Okay, so 2 minus 0 it is 2, 2 minus 0 2, 6 minus 0 6. Okay, so wherever 0 is there we have to copy that column as it is. Okay, so ये क्या है ना, इधर 0 है तो 2 minus 0 करेंगे तो 2 ही आएगा, 2 minus 0 अगेन 2, 6 minus 0 6 ही आएगा. तो जिधर भी हम लोग को 0 दिखता है ना वो ऐसे इधर रो वाइज रहेगा तो भी चलेगा, और एल्स इधर कॉलम वाइज जिधर भी हम लोग को मिनिमम वैल्यू 0 मिलता है तो हम लोग का एडवांटेज होता है, क्योंकि हम लोग को वो कॉलम एज इट इज़ कॉपी करना होता है. अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 2 minus 0 करके 2 ही लिखो तो भी चलेगा. सो इट इज़ सिंपल. जब भी 0 आता है तो इधर 0 है तो सिंपली हम लोग को ये कॉपी करना है. ओके, हियर 0 इज़ देयर, सो वी हैव टू कॉपी दिस column as it is, because even though we'll minus 2 minus 0, so then also answer is 2. So that's why we are copying here. So 2 2 6 4 0 4. We have completed second column. Now third column, that is 1 minus 1, that is 0, 4 minus 1 3, 4 minus 1 3, 2 minus 1 2, 1 minus 1 0, next 5 minus 1 4. Okay, now फोर्थ कॉलम, दैट इज सी. हियर तीनों जो भी कॉलम है उसमें 0 ही है तो हम लोग पूरा कॉपी कर सकते हैं. ओके, वी आर गेटिंग 0 हियर इन ऑल दिस 3 कॉलम्स, सो विल कॉपी दिस कॉलम्स एज इट इज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल 0 1 0 2 2 6, 3 0 3 0 1 7, 4 3 2 6 0 0. Okay, we have completed column reduction. So now next is scanning. Row wise column wise scanning we have to do. So this is the next step, that is scanning. See, first of all क्या करना है हम लोग को, ज़ीरो वाइज हम लोग को स्कैन करना है. मतलब पूरे रो में फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्कैनिंग होता है वो रो वाइज होता है. रो वाइज होने के बाद जब ज़ीरो बचता है तो कॉलम वाइज किया जाता है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल 0 जितना, मतलब एक रो देखने का उसमें कितना ज़ीरोज़ है. सी, फर्स्ट रो 3 ज़ीरोज़ है तो हम लोग नहीं ले सकते. जो भी रो में एक ही ज़ीरो होता है तो उसको हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं. ओके,
So here we have to do the scanning column wise and row wise. So first of all we have to do by row wise. So we will see that how much zeros are there in each row. So in first row there are 3 zeros, so we cannot take because we want only 1 zero in one row. So here 3 zeros are there, so we are not able to take this. Now second row, see only 1 zero is there, इधर सिर्फ एक ही जीरो है, तो हम लोग इसको ऐसा बॉक्स करेंगे. ओके, we have scan like this, so we'll cut like this. okay, हम लोग रो वाइज स्कैनिंग कर रहे हैं, मतलब हम लोग ऐसा चेक किया हॉरिजॉन्टली, हम लोग कट करेंगे वर्टिकली. ओके, दिस इज द फर्स्ट स्टेप. we'll scan like this horizontally and we will cut like this vertically. अभी next, see here we are getting 1 0, so we'll box it. okay, we have scanned like this, so we'll cut like this. horizontally scan करके vertically cut करना है. next, here 3 zeros are there, so we'll not take this. here no zero is there. जो भी कट हो चुका है उसको काउंट नहीं करना है. ओके, ये डिलीट हो गया, कट किया मतलब डिलीट हो गया. सो इधर कुछ भी ज़ीरो नहीं है, इधर 3 zeros है. नेक्स्ट इधर 1 0 है. ओके, सो वी कैन टेक दिस, ओनली 1 0 इज देयर, सो वी हैव बॉक्स्ड इट. स्कैन लाइक दिस, कट लाइक दिस. ओके, सो इधर हम लोग का रो का स्कैनिंग कंप्लीट हो गया. वी हैव कंप्लीटेड रो स्कैनिंग. नाउ वी विल डू कॉलम स्कैनिंग. कॉलम स्कैनिंग. ओके, कॉलम only 1 0 is there, so we can select this. we have scan like this, so we'll cut like this. okay, हम लोग ने कॉलम रिडक्शन चालू किया. सो कॉलम में फर्स्ट ऑफ ऑल एक ज़ीरो मिला तो उसको बॉक्स किया. हम लोग ने स्कैनिंग ऐसे किया क्योंकि हम लोग कॉलम वाइज कर रहे हैं. सो ऐसे स्कैन किया तो ऐसे कट करना है. ठीक है, सो वी हैव कंप्लीटेड फर्स्ट कॉलम. नाउ सेकेंड, सी 1 0 इज देयर. वी हैव स्कैन लाइक दिस, so we will cut like this. Scan vertically, so we will cut horizontally. Next, in the third column no zero is there and these columns are deleted, so we are not getting any zero. okay, so now we will check that whether this is equal or not. okay, so अभी हम लोग को क्या करना है, कुछ भी ज़ीरो नहीं बचा है तो हम लोग चेक करेंगे कि जो भी बॉक्सेस है वो इक्वल है कि नहीं. सी in the question they have given us that, see operation is 6, मतलब ऑपरेटर कितने हैं 6. we are having 6 operators but we have selected only 5 machines. okay, बॉक्स यानी कि क्या होता है, हम लोग ने वो मशीन सिलेक्ट किया लेकिन हमारे पास तो 6 ऑपरेटर है. मशीन्स कितना सिलेक्ट किया, 5 सिलेक्ट किया. ओके, ऑपरेटर सी ऑपरेटर 6 है लेकिन मशीन सिलेक्ट किया 1 2 3 4 5. बॉक्स यानी कि मशीन होता है. ऑपरेटर 6 है, मशीन 5 सिलेक्ट किया. इट्स नॉट इक्वल. ओके, ये दोनों भी इक्वल नहीं है. तो जब भी ऐसा होता है कि हम लोग का जो भी एलिमेंट है दैट इज़ ऑपरेटर ज़्यादा है और जो भी सिलेक्शन किया ज़ीरोस का वो कम है, मतलब इक्वल नहीं है, वो केस में हम लोग को अगेन एक टेबल प्रिपेयर करना पड़ता है दैट इज़ इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स. okay, so wherever this case happens means we are having 6 operators and we have selected only 5 machines, means these numbers are not equal. So in that case we have to prepare a new matrix which is called as improved matrix. So let's start with this. First of all मिनिमम वैल्यू. ओके, तो इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स करने के लिए हम लोग को मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा. ठीक है, सो ये जो भी अनडिलीटेड नंबर्स है, मतलब ये जो जिस पे लाइन नहीं है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कुछ भी लाइन नहीं है, बॉक्स नहीं है, ऐसे जो भी अनडिलीटेड नंबर्स होते हैं उसमें से मिनिमम वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है. सी इसमें मिनिमम वैल्यू दिख रहा है ये 1, सो मिनिमम वैल्यू इज़ 1. ओके, first of all we have to find out the minimum value from this undeleted numbers. okay, these are the undeleted numbers because we have not drawn any line or box on these numbers, so these are the undeleted numbers. okay, so first of all we'll find out the minimum value from undeleted numbers which is 1. so minimum value from undeleted number is 1. this is the first step. so we have find the minimum value that is 1. so let's start with improved matrix. सो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है,
जो भी डिलीटेड वैल्यूज़ है वो वैसे मतलब जैसा लिखा है वैसे ही आएगा. ओके, 0 2 0, these are the deleted numbers, so we'll write as it is. We will record deleted values as it is. Okay, but wherever this intersection is there, मतलब जो भी लाइन्स का इंटरसेक्शन हो रहा है इधर, वो लिखते वक्त हम लोग को ये मिनिमम वैल्यू ऐड करके लिखना है. ओके, सो हियर vertical line, horizontal line is coming together on this point, at this point, so it is an intersection point. So intersection point 1 2 3 4 5 6, these are the points where horizontal line and vertical lines both are coming together, so it is an intersection line. ओके, ये जो इंटरसेक्शन वाले लाइन है मतलब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों लाइंस इधर ये पॉइंट पे एक हो रहा है. सो ये जो पॉइंट्स है उसमें क्या करना है, ये मिनिमम वैल्यू ऐड करके लिखना है. ओके, सो वी हैव टू ऐड दिस मिनिमम वैल्यू इन दिस वैल्यू. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल 0 इज देयर ऑन द फोर्थ प्लेस, so 0 plus 1, that is 1. We have to add this minimum value in this value. So 0 plus 1, that is 1. Next 3 plus 1, that is 4. 4 plus 1, that is 5. We are just adding this minimum value, that is 1, in each number. Okay, next here 2 plus 1, that is 3. 1 plus 1, that is 2. 0 plus 1, that is 1. I hope you are getting me. We are just adding this minimum value in this each intersection point, that is this numbers. Okay, so we have recorded that. Now we'll record deleted values as it is. So 0 2 0, deleted values we have written as it is. Next 1 0 2 6, 0 3 0 7, 3 2 6 0. Okay, now we are having only undeleted numbers to record now. Okay, so first of all what we will do, we will minus this minimum value from this value. Okay, अभी हम लोग ने क्या क्या किया, जो भी इंटरसेक्शन वाले पॉइंट थे उसमें ये मिनिमम वैल्यू ऐड करके लिखा. उसके बाद जो भी डिलीट किया हुआ जो भी नंबर था वो डिलीटेड नंबर्स जैसे थे वैसे ही लिखे. अभी अनडिलीटेड नंबर्स हमारे पास है तो उसमें क्या करना है, जो भी मिनिमम वैल्यू है वो माइनस करके लिखना है. ओके, इंटरसेक्शन में ऐड करना है और जो भी अनडिलीटेड है उसमें माइनस करना है. ओके, सो वी हैव टू माइनस दिस मिनिमम वैल्यू फ्रॉम दिस ईच अनडिलीटेड नंबर. सो 1 minus 1 0, 2 minus 1 1, 3 minus 1 2, next 1 minus 1 0, 6 minus 1 5, 3 minus 1 2, next 4 minus 1, that is 3, 4 minus 1 3, 2 minus 1 1. Next we forgot to write this now. These are the deleted numbers, so हम लोग वैसे ही लिखेंगे, ये हम लोग ने नहीं लिखा था. ओके, ये डिलीटेड नंबर्स है वो वैसे ही लिखना है. नेक्स्ट 3 minus 1, that is 2, 4 minus 1, that is 3, 4 minus 1, that is 3. Okay, so we got the improved matrix. Okay, तो first of all हम लोग अगेन स्कैनिंग करेंगे. ओके, विल स्कैन इट अगेन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल रो बाय स्कैनिंग, 2 zeros 2 zeros 2 zeros, okay 1 0. So we are scanning horizontally, will cut vertically. Next 2 0, we cannot take this. 1 0, we are scanning horizontally, we will cut vertically. Next here 3 0, now column wise scanning. Okay, अभी हम लोग का रो खत्म हो गया तो हम लोग कॉलम वाइज करेंगे. सो इन द फर्स्ट कॉलम 3 zeros आर देयर, सो वी कैन नॉट स्कैन इट. नेक्स्ट 1 0, वी आर स्कैनिंग वर्टिकली, वी विल कट हॉरिजॉन्टली. 1 0, वी आर स्कैनिंग वर्टिकली, वी विल कट हॉरिजॉन्टली. नेक्स्ट 1 0, so we are scanning vertically, we will cut horizontally. These columns are already deleted, so we cannot check this. Now again we'll do row scanning. Okay, we have completed first of all row scanning, then we
have completed column scanning. Okay, then also we are having 1 0, so we'll do again रो स्कैनिंग. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ने रो का स्कैनिंग किया, 0 कट किए, देन कॉलम का स्कैनिंग किया, 0 कट किए. अभी हमारे पास और एक 0 अभी भी बाकी है, तो अभी अगेन हम लोग को रो का स्कैनिंग करना पड़ेगा. रो का करने का, कॉलम का करने का, तब भी 0 बचा, तो अगेन रो का स्कैनिंग करने का. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल रो स्कैनिंग, देन कॉलम स्कैनिंग, देन अगेन रो स्कैनिंग. So now row scanning, first row is deleted, so next row, that is 1 0. See, row wise scanning, column wise cutting. Okay, now we will check how much boxes are there. Okay, 1 2 3 4 5 6, we are having 6 operators, and now we are having 6 boxes, so it is equal. Now it is balanced. Okay, so we have completed the question here. Now simply we will calculate the operation time. Okay, इधर हम लोग का ऑपरेटर भी 6 हो गया और जो भी बॉक्सेस फाइंड आउट किया वो भी 6 हो गया. इसका मतलब इधर हम लोग का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. अभी सिंपली ऑपरेशन टाइम हम लोग को फाइंड आउट करना है. सी, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑपरेटर, 6 ऑपरेटर्स आर देयर. ओके, हमारे पास 6 ऑपरेटर है, तो हर एक ऑपरेटर को कौन सा मशीन मिलेगा वो इधर हम लोग को लिखना है. ओके, सो फर्स्ट ऑपरेटर विल गेट M3. सी, these are the operators and these are the machines. क्वेश्चन में हम लोग को दिया था. सी, इधर ऑपरेटर्स है और इधर मशीन्स है, उसके हिसाब से लिखना है. सो फर्स्ट ऑपरेटर को मशीन, इधर मशीन्स है ना, सो मशीन मतलब M3 मिलेगा. ओके, फर्स्ट ऑपरेटर इज गेटिंग M3, मशीन नंबर 3. सेकेंड ऑपरेटर इज गेटिंग M1, दैट इज मशीन 1. थर्ड ऑपरेटर इज गेटिंग M4, मशीन 4. Fourth operator is getting M5, fifth operator is getting M2, and sixth operator is getting M6, that is machine number 6. ओके, इधर तक हम लोग का हो गया कि ऑपरेटर को कौन सा मशीन मिलेगा वो हो गया. ओके, अभी हम लोग को टाइम फाइंड आउट करना है. ओके, वी हैव रिटन दैट विच ऑपरेटर विल गेट विच मशीन, सो वी हैव टू कैलकुलेट द ऑपरेशन टाइम नाउ. तो क्वेश्चन में जो भी हम लोग को डेटा दिया है दैट इज टाइम. ओके, दे हैव गिवन अस अ टाइम दैट विच ऑपरेटर विल रिक्वायर्ड हाउ मच टाइम फॉर विच मशीन. एक ऑपरेटर को कौन से मशीन पे कितना टाइम लगेगा वो हम लोग को दिया है. ठीक है, अभी सिंपली अच्छे से हम लोग को लिखना है. सी, ऑपरेटर नंबर 1 को मशीन 3 में. ओके, सो ऑपरेटर नंबर 1 दैट इज मशीन 3, ऐसे फाइंड आउट करना है. ऑपरेटर 1 मशीन 3 में क्या वैल्यू है, दैट इज 2, दैट इज 2. नेक्स्ट ऑपरेटर 2 M1, ऑपरेटर 2 M1 में दैट इज 4. लाइक दैट वी हैव टू राइट टाइम. ऑपरेटर 3 M4, ऑपरेटर 3 M4, इट इज 4, सो इट इज 4. नेक्स्ट ऑपरेटर 4 M5, so operator 4 M5 is 3. Okay, operator 4 M5 is 3. Next operator 5 M2, operator 5 M2 is 3, operator 5 M2 is 3. Now last one, that is operator 6, machine number 6. Okay, so operator 6 machine number 6, that is 1. Don't consider this new column because our question is up to this only. So operator number 6 machine number 6, that is 1. Okay, so we'll write 1 here. अभी सिंपली हम लोग को ये जो भी टाइम है उसका टोटल फाइंड आउट करना है. तो टोटल ऑपरेशन टाइम हम लोग को मिल जाएगा. सी, विल टेक द टोटल ऑफ दिस टाइम, दैट इज 2 + 4 + 4 + 3 + 3 + 1. So we are getting 17 hours. 17 hours which is minimum operation time. Okay, मतलब अगर हम लोग ने प्रॉपरली एलोकेशन किया तो हम लोग का ओल्ड मशीनरी का जो भी सिस्टम है उसके हिसाब से 17 आवर्स लगेगा जो मिनिमम ऑपरेशन टाइम है. ओके, if we are allocating properly operators and the old machines, so we'll get 17 hours as a minimum operation time.
सो लेट्स रिवाइज दिस स्टेप्स अगेन. ओके, हम लोग ये जो भी स्टेप्स किया वो एक बार रिवाइज करेंगे क्योंकि हर एक क्वेश्चन में यही स्टेप हम लोग को फॉलो करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल, recording the data as it is which is given in the question. Then take the minimum value from each row. Okay, जो भी रो है उसमें से minimum value find out करना है. So we have recorded the minimum value as per row. Next, row reduction is the next step. So take a number minus this minimum value and record. एक जो भी नंबर है वो लेना है, उसमें से मिनिमम वैल्यू माइनस करके जो बचेगा उतना रिकॉर्ड करना है. ओके, फर्स्ट स्टेप इज रिकॉर्डिंग द डेटा एज इट इज. सेकेंड इज टेक अ मिनिमम वैल्यू रो वाइज, देन डिडक्ट दैट मिनिमम वैल्यू फ्रॉम ईच नंबर रो वाइज. सो रिकॉर्ड द रो रिडक्शन टेबल. देन टेक अ मिनिमम वैल्यू कॉलम वाइज, कॉलम के हिसाब से जो भी मिनिमम वैल्यू है वो फाइंड आउट करना है. देन माइनस द मिनिमम वैल्यू फ्रॉम ईच नंबर कॉलम वाइज. ओके, सो कॉलम में जो भी वैल्यूज़ है उसमें से ये मिनिमम वैल्यू माइनस करके अमाउंट जो भी नंबर है वो लिखना है. सो इट इज़ कॉलम रिडक्शन टेबल. ओके, उसके बाद स्कैनिंग करना है. सो स्कैनिंग करते वक्त फर्स्ट ऑफ ऑल रो वाइज स्कैनिंग करना है. उसमें अगर एक ज़ीरो मिलेगा तो ही उसको बॉक्स करना है. रो वाइज स्कैनिंग है मतलब कॉलम वाइज कटिंग होगा. हॉरिजॉन्टल स्कैनिंग, वर्टिकल कटिंग. If we are getting 1 0 in a row, then only we will box it and we'll cut it vertically. After row reduction, we will do column reduction. Okay. See, first of all जो रो का स्कैनिंग किया और कटिंग किया, उसके बाद कॉलम का स्कैनिंग करके कटिंग करना है. While doing column reduction, we will scan vertically, will cut horizontally. Okay. स्कैन जो भी करते हैं वो कॉलम का करते वक्त वर्टिकली करना है लेकिन कट हॉरिजॉन्टली करना है. Then we will count the number of boxes. So it is 5. It was 5. Number of operator 6. So it is not a balance table. So we will go for improved matrix. ये दोनों बैलेंस नहीं था, so इसीलिए improved matrix करना पड़ा. So for improved matrix we found the minimum value from undeleted numbers. Undeleted numbers में से minimum values हम लोग ने find out किया, that was 1. Okay. सो जो भी डिलीटेड वैल्यूज़ था वो एज इट इज़ लिखा. उसके बाद इंटरसेक्शन वाला पॉइंट में ये मिनिमम वैल्यू ऐड किया. ओके, सो ऐड करने के बाद लिखा. देन फ्रॉम अनडिलीटेड नंबर्स वी डिडक्टेड दिस मिनिमम वैल्यू. ये जो मिनिमम वैल्यू है वो अनडिलीटेड नंबर्स में से माइनस किया. जो भी फाइनल टेबल हम लोग का प्रिपेयर हो गया, दैट इज़ इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स. ओके, अगेन इसमें रो रिडक्शन मतलब रो वाइज स्कैनिंग, कॉलम वाइज कटिंग वो सब किया. रो का स्कैनिंग, कॉलम का स्कैनिंग किया. ओके, रो स्कैनिंग, कॉलम स्कैनिंग करने के बाद फिर भी अगर ज़ीरो बच रहा है तो अगेन रो का स्कैनिंग करो, अगेन कॉलम का स्कैनिंग करो. सो वो सब करने के बाद हमारा 6 = 6 मतलब नंबर ऑफ ऑपरेटर 6 एंड बॉक्सेस 6 दोनों हो गया इक्वल. सो सिंपली नंबर ऑफ ऑपरेटर्स उनको मशीन कौन सा मिलेगा. For example, for first operator M3, second operator M1, like that we recorded all the operators and their number of machines. That is for 3 it is M4 like that. Then we check from the original table which is given in the question, or else we can check from here also because this is the original table. So M3 first operator up to M3 it is 2. Like that we have recorded this operation time. Then we took the total, that is 17 hours. So here we have completed question number 9A part. Now we have to do question number 9B part, which they have told us to take a new machinery also. Okay. So for part B we have prepared the table like this. एक बार check करते हैं. B part, reset the problem with a new machine. Okay. Now we have to take this column also, that is new machine, and also and find the allocation of the operator in each machine and comment on the whether it is advantageous to replace an old to achieve the old machine to achieve the reduction in operation time only. Okay, so first of all we have to take this column also, that is new machinery. Then we'll reset the problem by taking this column. उसके बाद again हम लोग का रो रिडक्शन, कॉलम रिडक्शन, स्कैनिंग, कटिंग वो सब हो जाएगा. देन वी विल डिसाइड दैट वेदर इट इज़ एडवांटेजियस और नॉट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट.
first of all we have recorded the table as it is. Okay, machinery 1 2 3 4 5 6. Okay, then this is the new column. We have recorded the columns as it is, m1 m2 m3 m4 m5 and m6, and this is the new column. Okay, now we will check whether the question is balance or imbalance. Okay, number of rows, that is 1 2 3 4 5 6. सी क्वेश्चन में चेक करते हैं. अभी इधर हम लोग ने न्यू मशीनरी का कॉलम भी लिया, सो हम लोग का नंबर ऑफ रोज कितना हुआ 1 2 3 4 5 6. नंबर ऑफ रोज इट इज 6 एंड कॉलम 1 2 3 4 5 6 7. रोज 6 कॉलम 7. इट इज़ नॉट अ बैलेंस क्वेश्चन. ओके, हम लोग का ये क्वेश्चन बैलेंस क्वेश्चन नहीं है. सी जो भी पार्ट ए हम लोग ने किया तभी वो बैलेंस था. सी number of rows 1 2 3 4 5 6, column 1 2 3 4 5 6. row and column were equal, so this was the balance problem. But now in case of part B it is not a balance problem because we are having 6 rows and we are having 7 columns, so we have to add one dummy row, that is 0 0 0 0 0 0 0. now number of rows 1 2 3 4 5 6 7. number of columns 1 2 3 4 5 6 7. rows and column we are having perfect match, so now this is the balance problem. okay, हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम एंड रो इक्वल नहीं था क्योंकि कॉलम्स 7 थे और रो 6 थे, सो इसीलिए हम लोग ने एक डमी यानी कि 0 वाला एक रो ऐड किया. सो अभी हम लोग का 7:7 हो गया है. अभी सिंपल वे जो भी हम लोग ने उधर स्टेप्स फॉलो किया वही करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल मिनिमम वैल्यू फ्रॉम ईच रो, सो रो वाइज मिनिमम वैल्यू 1 1 1 हियर 3 देन 3 1 0. okay, now row reduction means 2 minus 1, that is 1. 3 minus 1 2, 2 minus 1 1. next 1 minus 1, that is 0. 4 minus 1 3, 5 minus 1 4, 6 minus 1 5. next 4 minus 1 3, 4 minus 1 3, 6 minus 1 5, 3 minus 1 2, 2 minus 1 1, 5 minus 1 4, 1 minus 1 0. next 6 minus 1 5, 10 minus 1 9, 8 minus 1 7, 4 minus 1 3, 7 minus 1 6, 6 minus 1 5, 1 minus 1, that is 0. next 8 minus 3 5, 7 minus 3 4, 6 minus 3 3, 5 minus 3 2, 3 minus 3 0, 9 minus 3 6, 4 minus 3 1. next 7 minus 3 4, 3 minus 3 0, 4 minus 3 1, 5 minus 3 2, 4 minus 3 1, 3 minus 3 0, 12 minus 3 9. next 5 minus 1 4, 5 minus 1 4, 6 minus 1 5, 7 minus 1 6, 8 minus 1 7, 1 minus 1 0, 6 minus 1 5. next अभी 0 माइनस 0 0 करेंगे तो 0 ही आएगा, सो 0 माइनस 0 इट इज़ एवरीथिंग इज 0 0 0 0 0. ओके, वी हैव कंप्लीटेड रो रिडक्शन. नाउ कॉलम रिडक्शन. फॉर दैट वी विल फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू फ्रॉम ईच कॉलम. ओके, हम लोग को कॉलम में से मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है. सो फर्स्ट कॉलम सी 0 0 0, क्योंकि अभी ये जो रो है वो 0 है तो पूरा का पूरा 0 ही आएगा सारे कॉलम्स में से. ओके, सी ईच एंड एवरी वैल्यू इज़ 0, सो जो भी टेबल है वो वैसा का वैसा ही हम लोग का कॉलम रिडक्शन में कॉपी हो जाएगा. अगर आप लोग ने इधर ही स्कैनिंग और कटिंग किया तो भी चलेगा, लेकिन स्टेप्स हम लोग भूल ना पाए इसके लिए मैंने प्रॉपर स्टेप वाइज ही टेबल्स प्रिपेयर किया है. तो अभी कॉलम वाइज देखा जाए तो पूरा कॉलम में हर एक कॉलम में 0 है. इसका मतलब हर एक कॉलम में 0 वैल्यू ही मिनिमम वैल्यू रहेगा. ओके, ईच कॉलम इज हैविंग 0, सो वी आर गेटिंग मिनिमम वैल्यू फ्रॉम कॉलम वाइज. जो भी मिनिमम वैल्यू है वो 0 ही मिलेगा. सो जो टेबल है वो कॉपी करके लेंगे एज अ कॉलम रिडक्शन.
See, here we have completed the column reduction table, which is exactly same as a column reduction. Okay, so we have copied that table directly here. So now we will do scanning and cutting. Okay, first of all row scanning, row का scanning करेंगे. So 1 0 is there. Row scanning मतलब horizontal scanning, vertical cutting. Next, only 1 0 is there. So row scanning, column cutting. Next, no 0 is there, 1 0 is there. So row scanning, column cutting. Next, 2 0 we cannot cut. Next, 1 0 row scanning, column cutting. Okay, here 3 zeros, so we cannot cut these zeros. Next, now column scanning. So first of all, first column, only 1 0 we are scanning vertically, we will cut horizontally. Next, 1 0 scanning vertically, cutting horizontally. So next column, then उसके बाद तो deleted columns है, so इधर 0 नहीं है. Now we will count the number of boxes. 1 2 3 4 5 6. Okay, we are having now 7 operators. See, 1 2 3 4 5 6 7. We are having 7 operators, but we are having 1 2 3 4 5 6 boxes, so it's not equal. We have to go for improved matrix. Okay, so हम लोग को improved matrix prepare करना पड़ेगा. First of all, intersection points, that is 1 2 3 4 5 6 7 8. These are the intersection point. Next, minimum value from undeleted numbers. Okay, minimum value is 1. Undeleted numbers में से minimum value है 1. So हम लोग का क्या है, जो भी intersection point है उसमें ये minimum value add करना है. Okay, so intersection point minimum value add करेंगे, that is 2 plus 1 3, 1 plus 1 2, 0 plus 1 1, 9 plus 1 that is 10. Okay, next here 0 plus 1 1, 0 plus 1 1, 0 plus 1 0 plus 1. Okay, अभी जो भी डिलीटेड नंबर्स है वो वैसे ही लिखना है. सो रिकॉर्ड द डिलीटेड नंबर्स एज इट इज. नेक्स्ट हियर 6 7 0 5 2 0 6 1 3 6 5 0, then 2 1 4 0 0 3 4 5. Okay, now we will deduct this minimum value from each undeleted numbers. So 1 minus 1, जो भी undeleted numbers है उसमें से minimum value minus करना है. So 1 minus 1 0, 2 minus 1 1, 1 minus 1 0, 3 minus 1 2, 3 minus 1 2, 5 minus 1 4, 5 minus 1 4, 9 minus 1 8, 7 minus 1 6, 5 minus 1 that is 4, 4 minus 1 3, 3 minus 2 3 minus 1 it is 2. Next 4 minus 1 3, 4 minus 1 3, 5 minus 1 4. So we have completed improved matrix table. Again scanning, so row scanning 3 zeros, no cutting. So next 1 0 horizontal scanning, vertical cutting, no 0, 1 0 scanning like this, cutting like this. Next 1 0 horizontal scanning, vertical cutting, horizontal scanning, vertical cutting. Again 1 0 horizontal scanning, vertical cutting. Next 2 0, so we cannot cut this. Again column scanning. Okay, अभी हम लोग ने रो स्कैनिंग कंप्लीट किया, अभी कॉलम स्कैनिंग. सो 2 0 है, कट नहीं कर सकते. इधर कॉलम ही कट किया है. नेक्स्ट 2 0 है, सो नहीं कट कर सकते. हियर 1 0 कॉलम स्कैनिंग, रो कटिंग. हियर वी हैव already deleted this column, so we cannot cut it. See, here we have completed row scanning and column scanning. So we are having 2 zeros yet, so we will go for again row or column scanning. See, here we are having 0,
सो विल गो फॉर कॉलम स्कैनिंग. ओके, अभी इधर एक ही रो में 2 0 है, सो रो स्कैनिंग नहीं हो सकता, तो हम लोग कॉलम स्कैनिंग करेंगे. सी कॉलम स्कैनिंग, so vertical scanning, horizontal cutting. Okay, now we are having 1 2 3 4 5 6. Okay, so we are having 6 boxes. अगेन वही प्रॉब्लम आ गया, क्योंकि 7 ऑपरेटर है और 6 बॉक्सेस है, तो नहीं हो सकता. अगेन हम लोग को इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स प्रिपेयर करना पड़ेगा. ओके, सो इधर हम लोग का जीरोस खत्म हो गया, लेकिन बॉक्सेस तो अभी भी 6 ही है, तो हम लोग को अगेन इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स प्रिपेयर करना पड़ेगा. सेम प्रोसीजर, दैट इज इंटरसेक्शन पॉइंट 1 2 3 4, 1 2 3 4. minimum value is again 1. okay, so minimum value is again 1. सेम प्रोसीजर फटाफट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरसेक्शन पॉइंट्स, 1 + 1 दैट इज 2. नेक्स्ट 3 + 1. ओके, 3 + 1 it is 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6. next 0 + 1 that is 1. next this 1 + 1 2, 1 + 1 2, 1 + 1 2. देन डिलीटेड नंबर्स जो जैसा है वैसे ही लिखेंगे, 0 0 0, देन 1 4 0 0 5 6 0 6 1, then 7 0 5. here 2 8 3 0 3 0 0 1. ओके, हम लोग ने जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट थे उसका काम कंप्लीट किया, और जो भी डिलीटेड नंबर्स थे वो वैसे ही लिखा है. ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड दैट इंटरसेक्शन पॉइंट. we have added this minimum value in each intersection point, like 3 + 1 4, like that, and we have recorded all the deleted numbers as it is. now from undeleted number we will deduct this minimum value. okay, ये जो भी undeleted number है उसमें से minimum value फटाफट लेस करेंगे और लिखेंगे. 2 - 1 that is 1, 4 - 1 3, 2 - 1 that is 1, 4 - 1 3, 6 - 1 5, then 3 - 1 2, then 4 - 1 3, 2 - 1 1, 2 - 1 1, then 4 - 1 3, इधर 1 - 1 0, 3 - 1 2, then 3 - 1 2, 4 - 1 3, 6 - 1 5. ओके, अगेन हम लोग स्कैनिंग करेंगे. सो रो स्कैनिंग नॉट पॉसिबल. हियर 1 0, कॉलम रो का स्कैनिंग किया तो कॉलम का कटिंग होगा. नेक्स्ट नो 0, हियर 1 0, रो स्कैनिंग कॉलम कटिंग. 2 0 कैनॉट कट इट. 1 0, सो रो का स्कैनिंग कॉलम का कटिंग. 2 0 कैनॉट कट इट. हियर कॉलम स्कैनिंग, अभी रो का स्कैनिंग खत्म हो गया, अभी कॉलम का करेंगे. इधर नहीं कर सकते, 2 0 है, इधर 1 0 है. ओके, सो कॉलम का स्कैनिंग किया, रो का कटिंग करेंगे. इधर 2 0 है, नहीं कर सकते. इधर 1 0 है, सो कॉलम का स्कैनिंग किया, रो का कटिंग करेंगे. नेक्स्ट कॉलम तो ऑलरेडी डिलीटेड है. अगेन हम लोग सर्च करेंगे कि 0 कहाँ पे है. 1 2 2 0 अभी भी बाकी है. सी अगेन हम लोग रो और एल्स कॉलम का स्कैनिंग करेंगे. ओके, सो इधर रो का स्कैनिंग नहीं हो सकता, कॉलम का ही करना पड़ेगा. सो कॉलम वाइज स्कैनिंग, दैट इज वर्टिकल स्कैनिंग, हॉरिजॉन्टल कटिंग. सो अगेन 1 2 3 4 5 6, वी आर गेटिंग 6, यानी कि अभी भी 7 = 6, दैट इज नॉट इक्वल. ऐसा ही सिचुएशन है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6. ओके, सो अभी क्या होगा, अगेन एक लास्ट इम्प्रूव मैट्रिक्स हम लोग को प्रिपेयर करना पड़ेगा. सी एग्ज़ाम में इतना लेंदी क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन अभी ये फर्स्ट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, मतलब सीख रहे हैं, तो हम लोग को ये प्रैक्टिस के लिए अच्छा क्वेश्चन है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेम प्रोसीजर, दैट इज इंटरसेक्शन पॉइंट 1 2 3 4 5 6. okay, all these are intersection point. we will find out the minimum value from undeleted numbers, which is 1. minimum value is 1. okay, इधर मेरा स्पेस का थोड़ा इशू है, सो इसीलिए मैंने इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स नंबर 3 डिफरेंट बनाया दूसरे पेज पे. ओके, सो अनडिलीटेड नंबर इज 1.
सिंपली फटाफट हम लोग इधर लिख के लेंगे, दैट इज इंटरसेक्शन वाला पॉइंट 4 है ना, सो उसमें ऐड करेंगे 1 दैट इज़ 5, इधर 5 + 1 6, 6 + 1 7, नेक्स्ट हियर 2 + 1 3, 1 + 1 2, 10 + 1 11, हियर इधर 2 + 1 3, नेक्स्ट 2 + 1 3 एंड 3। ओके, सिंपली वही प्रोसीजर फॉलो करना है, बाद में जो भी डिलीटेड नंबर्स है वो लिखना है एज इट इज़। सो 4 1 0 6 5 0 0 6 1 7 0 5, उसके बाद इधर 3 0 0 2, हियर 0 1 0 1। ओके, सो इंटरसेक्शन पॉइंट एंड डिलीटेड नंबर्स जो है वो सब लिखे हुआ है। अभी सिंपली माइनस करके लिखना है अनडिलीटेड नंबर्स। सो 1 - 1 0, 2 - 1 1, 3 - 1 2, 1 - 1 0, नेक्स्ट 3 - 1 2, 8 - 1 दैट इज 7, 5 - 1 4, 2 - 1 1, इधर 2 2 0 0, 2 - 1 1, 3 - 1 2, 3 - 1 2, 5 - 1 4। ओके, सो वी गॉट द इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स नंबर 3। सो अगेन वो स्कैनिंग एंड कटिंग का पार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रो स्कैनिंग, सो हियर वी आर गेटिंग 1 0, सो रो का स्कैनिंग, कॉलम का कटिंग 3 0 2 0 1 0। सी रो का स्कैनिंग, कॉलम का कटिंग, इधर 2 0 है तो नहीं कर सकते, कॉलम में भी नहीं कर सकते, इधर 1 0 है, रो सॉरी कॉलम का स्कैनिंग, रो का कटिंग, वर्टिकल स्कैनिंग हॉरिजॉन्टल कटिंग, इधर 3 0 है, नहीं 2 0 नहीं 1 0, कॉलम स्कैनिंग रो कटिंग। ओके, अभी रो का स्कैनिंग हो गया, कॉलम का स्कैनिंग हो गया, अभी अगेन हम लोग को रो और एल्स कॉलम का स्कैनिंग करना पड़ेगा। अभी ध्यान से करना है। सी 1 2 3 4, हमारे पास 4 बॉक्सेस है और 7 ऑपरेटर्स हैं, मतलब 3 लोगों का एलोकेशन अभी बाकी है। ओके, वी आर हैविंग 4 बॉक्सेस एंड 7 ऑपरेटर्स, सो 3 ऑपरेटर्स का एलोकेशन अभी बाकी है। अभी वो करते वक्त ध्यान से करना है कि हम लोग को किधर इसको पुट करना है। ओके, सो इधर अगर हम लोग ने इधर एक पुट किया, मतलब जब भी ऐसा सिचुएशन आता है कि हमारे पास बहुत सारे ज़ीरो है तो हम लोग को एक ज़ीरो अज्यूम करना पड़ता है, मतलब कौन सा भी एक ज़ीरो हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, वेर एवर दिस सिचुएशन इज़ देयर, मतलब मोर ज़ीरोज़ आर देयर, सो वी कैन अज्यूम 1 0। ओके, सो हियर वी आर अज्यूमिंग दिस ज़ीरो। ओके, हमने इसको रो वाइज सिलेक्ट किया। ओके, स्कैनिंग लाइक दिस, वी विल कट लाइक दिस। ओके, एक ज़ीरो हम लोग अज्यूम कर सकते हैं, वी कैन अज्यूम 1 0, सो वी अज्यूम दिस 1 0, we put a box, so we scan horizontally, we cut vertically. So in the first column we got 1 box, second column we got 1 box, now third and fourth column is there. Okay, so we can select any one box. So हम लोग ने क्या किया, इधर 1 0 है तो हम लोग ने बॉक्स किया, स्कैनिंग horizontally, cutting vertically. Okay, now only 1 0 is there in the row, so scanning horizontally, cutting vertically. Now 1 2 3 4 5 6 7, 7 is equal to 7. now balance problem. so अभी हम लोग को किसको कौन सा मशीन देना है वो देखना है। so first of all ऑपरेटर नंबर 1 that is machine 1, ऑपरेटर नंबर 2 that is मशीन नंबर 4। ओके, वैसे हम लोग को लिखना है। सो ऑपरेटर नंबर 3 को न्यू मशीन जाएगा, दैट इज लास्ट कॉलम, सो न्यू। सी इधर तक हम लोग का हो गया। अभी नेक्स्ट ऑपरेटर नंबर 4 दैट इज दिस, मशीन नंबर 5, नेक्स्ट ऑपरेटर 5 M2, ऑपरेटर 6 M6 एंड ऑपरेटर 7 विच वॉज द डमी रो, सो उसके लिए M3 आएगा। ओके, सारे ऑपरेटर को सारे जो भी मशीन से वो एलोकेट किया है। अभी सिंपली हम लोग को ऑपरेशन टाइम फाइंड आउट करना है, तो हम लोग का जो भी क्वेश्चन में जो टेबल है उससे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो टेबल है उसमें से हम लोग एलोकेशन कर सकते हैं।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑपरेटर 1 को मशीनरी 1, सो ऑपरेटर 1 को मशीनरी 1 यानी कि 2। नेक्स्ट ऑपरेटर 2 को मशीनरी 4, सो ऑपरेटर 2 को मशीनरी 4 दैट इज़ 3। ऑपरेटर 3 को मशीनरी न्यू यानी कि 1। नेक्स्ट ऑपरेटर 4 को मशीनरी 5 यानी कि 3। नेक्स्ट ऑपरेटर 5 को मशीनरी 2 यानी कि 3। नेक्स्ट इज ऑपरेटर 6 को मशीनरी 6, तो ऑपरेटर 6 और मशीनरी 6 दैट इज 1। ओके, लास्ट वन ऑपरेटर 7 को मशीनरी 3। अभी ऑपरेटर 7 क्वेश्चन में नहीं है क्योंकि हम लोग ने उसको डमी ऐड किया था। सो ऑपरेटर 7 के लिए मशीनरी 3 यानी कि 0। ओके, तो सिंपली अभी टोटल फाइंड आउट करना है कि इसका कितना टोटल ऑपरेशन टाइम आता है, दैट इज 2 + 3 + 1 + 3 + 3 + 1 दैट इज 13 आवर्स। सो 13 आवर्स इज द मिनिमम ऑपरेशन टाइम इन केस ऑफ केस बी, मतलब न्यू मशीनरी लिया तो कितना हम लोग का ऑपरेटिंग टाइम होगा, तो दैट इज 13 आवर्स। ओके, सो इधर हम लोग का क्या हो गया, पार्ट 1। ओके, इन केस ऑफ पार्ट 1 ऑपरेशन टाइम वॉज 17 आवर्स। ओके, बट इन केस ऑफ पार्ट बी इट इज़ 13 आवर्स। इसका मतलब इट इज़ एडवांटेजेस टू टेक अ न्यू मशीनरी, टू रिप्लेस अ old machinery with a new machinery. It is advantageous because our operation time is getting minimum. So here we have completed A and B part. A part का आंसर था 17 hours, that is minimum operation time for old machines. B part का आंसर था 13 hours, that is whether it is advantageous or not. Yes, it is advantageous to replace the old machinery with a new, because we are getting 13 hours as a operating time, which is minimum. Okay, as compared to this A part. So we have completed A and B. Now see how will the operator B reallocate the machines after replacement. Okay, we have given that answer also in this table. Okay, we will replace a machinery number 3 with a new machinery. Okay, उन लोग ने बोला कि आफ्टर रिप्लेसमेंट कैसे हम लोग एलोकेट करेंगे। सो मशीनरी नंबर 3 जो है वो इधर हम लोग रिप्लेस करेंगे। ओके, न्यू मशीनरी मिलेगा ऑपरेटर नंबर 3 को, और मशीनरी 3 लास्ट में यानी कि डमी ऑपरेटर को है, मतलब ये रिप्लेस हो जाएगा। ओके, सिंपली वी विल रिप्लेस मशीनरी नंबर 3 विथ अ न्यू मशीनरी। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड A, B एंड C पार्ट। सी, ये जो आंसर है उसमें ये पार्ट करेक्ट है, उसके बाद ये जो पार्ट है उसमें मिस्टेक है, इधर तक करेक्ट था ये सब। उसके बाद इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स उन्होंने किया, उसके बाद ये पार्ट है ना इधर चाहिए था, मतलब इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स 1, 2, 3 एंड लास्ट 1। उन लोग का प्रेजेंटेशन का पार्ट कुछ अलग ही दिया है, सो इसीलिए कन्फ्यूजन हो सकता है आपका। सो इधर तक करेक्ट था, इधर तक इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स नंबर 1, देन इट इज़ इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स 2, इट इज़ इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स 3 एंड दिस इज़ द लास्ट पार्ट। ओके, so don't confuse with this answer is correct, but presentation part is poor. So here we have completed illustration number 9, which is the first illustration of assignment problem. So if you found this video helpful, then please like the video, do share with your friends, and subscribe my channel and press the bell icon to get more updates. Thanks for watching, friends.